Hello students, good morning. Hope you all are doing good at your place. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this online class in my YouTube channel Digital Classroom. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था some definitions of management and effectiveness and efficiency. Today in this video we shall learn importance of management, characteristics of management. So let us start. Management. What is management? It's a definition given by Mary Parker Follett. According to Mary Parker Follett, management is the art of getting things done through others. And the other definition given by F.W. Taylor, that is, management is the art of knowing exactly what you want your men to do and then seeing that they do in the best and the cheapest way. वो काम को पूरा करें और समय पर करें. The minimum utilization of resources. And F.W. Taylor, he was known as the father of the scientific management also. And management definition, according to modern concept, management is the process of getting things done through others with the aim of achieving desired common goals effectively and efficiently. तो दिस डेफिनेशन सेज दैट बच्चे की मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए. बिना उद्देश्य के कोई भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन संगठन सरवाइव नहीं कर सकती. एंड द गोल शुड बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. इफेक्टिवली का मतलब कि काम होना चाहिए और वो पूरा जो है कैसे होना चाहिए, समय पर होना चाहिए. एंड एफिशिएंटली में मैंने आपको बताया था कि उसको मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से उसको पूरा करना है. एंड व्हाट इज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ and using resources of an organization for accomplishing the organizational goals efficiently and effectively in an ever-changing environment. किसी भी अवस्था में उसको efficiently and effectively जो है गोल्स को accomplish करना है, पूरा करना है. तो एक गुड जो मैनेजर होगा वो इस काम को effectively and efficiently जो है वो कर पाएगा. And here again let us revise the two terms effectiveness and efficiency are different but they are interrelated. Effectiveness means accomplishment of goals where efficiency means accomplishment of goals at minimum possible cost through optimum utilization of resources. जैसा मैंने आपको बताया था. तो इसका मतलब क्या है, effectiveness achieving target on time and efficiency means targets are achieved with minimum resources and cost, and its focus is on completion of work and its optimum utilization of resources. It is concerned with end result and it is concerned with cutting down the cost. Okay, so effective manager कौन होगा, is about to accomplishing a task or producing a desired result. Example, a company targeted production is suppose 2000 units per year है, and the manager is able to produce 2000 units but higher production of cost, more labor cost, material costs, etc. In this case manager is effective but not efficient. इसको हम बोलेंगे. क्यों? टारगेट 2000 था, achieved at a rate of rupees 250 per unit. He is effective but not efficient. क्यों? क्योंकि इसने जो है इफेक्टिव है बट नॉट जो है इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इसने रिसोर्सेज किया. जो लेबर कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, मटेरियल कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा थी. एंड ए मैनेजर इज साइड टू बी एफिशिएंट इफ ही अकम्प्लिशेस द टास्क विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अब ही प्रोड्यूस्ड 1800 एट ए रेट ऑफ रुपीज 175. इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर लागत कितनी आई थी पर यूनिट 250 और यहाँ कितनी आई 175. बट ही क्या किया, उसने टारगेट अचीव किया, 2000 यूनिट्स उसने बनाए, बट ही इज ओनली एबल टू प्रोड्यूस ओनली 1800 यूनिट्स. ओके, सो
दिस इज द केस ऑफ एफिशिएंट मैनेजर। सो हमें क्या होना चाहिए, एक मैनेजर को इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो हियर आर सम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इट्स ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड goal oriented, it is a pervasive. Management is a continuous process and management is a group activity. Management is a dynamic function. Management is an intangible force and management is multi dimensional. So बच्चे हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड, जो प्रबंध का जो है वो उद्देश्य उसका होना चाहिए, जो है प्रबंध का उद्देश्य उसका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, कुछ न कुछ इसका गोल होना चाहिए। यानी कि किसी भी संगठन के उद्देश्य होते हैं एंड जिनके कारण उनका अस्तित्व होता है। यदि किसी संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है तो उसका अस्तित्व जो है वो नहीं हो सकता। और वो कैसे होने चाहिए उद्देश्य, वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। एंड प्रत्येक जो संगठन है बच्चे, उसके जो उद्देश्य हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, होलसेलर है, रिटेलर है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, मैक्सिमम सेल्स उसका प्राप्त करना हो सकता है। एंड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, मैक्सिमम उसके जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देना उनका उद्देश्य हो सकता है। तो दिस इज ए गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट में क्या है, उसको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज परवेसिव। बच्चे परवेसिव क्या होता है, इट्स ए यूनिवर्सल। तो जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल होता है एंड इट इज सीन इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हम स्टडी करेंगे आगे इस चैप्टर में। एंड ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी हो छोटी हो, सब में जो है ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सब में होता है। एंड ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और दे मे बी ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। एंड ऑल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कुछ भी हो उसमें हमारा जो ये मैनेजमेंट है इट्स ए परवेसिव एंड ये सर्वव्यापक होता है, हर जगह पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया और बस खत्म। तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। निरंतर समस्याओं का जो समाधान है वो उनका सुधार उसके करने की आवश्यकता हमें रहती है। तो इस कारण जो प्रबंधक जो है एक सतत क्रिया कहा जाता सकता है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जितने भी व्यवसाय की इकाइयां हैं। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी इज ग्रुप एक्टिविटी। भाई जो इसमें प्रबंध है वो एक कोई सिंगल व्यक्ति के करने का काम नहीं है, इसमें एक सामूहिक क्रिया है और ये स्वयं कार्य नहीं करता, अपितु क्या करता है, इसका कार्य अन्य व्यक्तियों के द्वारा कार्य को संपादित कराना होता है। और संगठन में जो विभिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का एक समूह है और जो समूह का प्रत्येक व्यक्ति है वो संगठन में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर संगठन में शामिल होता है। तो इसलिए परंतु संगठन के जो सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करता है। तो इससे ग्रुप एक्टिविटी सब मिलकर जो है इसको काम को टीम स्पिरिट के साथ इसको करना होता है तथा व्यक्तिगत प्रयत्नों में समान दिशा में समन्वय की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ आवश्यक एवं अवसरों में परिवर्तन के अनुसार प्रबंध सदस्यों को बढ़ने एवं उनके विकास को संभव भी बनाता। तो दैट्स व्हाई इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट है इट्स ए डायनामिक फंक्शन। व्हाट इज डायनामिक बच्चे? डायनामिक एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक होता है मैंने स्थिर है, और डायनामिक होता है जो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। एंड सो वी से दैट इट इज ए डायनामिक जो है परिवर्तन है। प्रबंध एक क्या है, गतिशील कार्य है, वह इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालता रहता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले गाड़ी पहले काफी समय पहले थी और अभी जो गाड़ी है इसने इसका रूप ले लिया है। नाउ दिस गाड़ियों में भी हर रोज हर महीने आपको नए नए परिवर्तन, नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड यू सी इन आप मोबाइल सबने यूज किया है एंड आप देखते होंगे सबसे पहले नोकिया
के जो मोबाइल्स आपने देखे होंगे N95 एंड N30 क्या क्या होते थे, नाउ स्मार्टफोन। अब उसमें पहले जो है ओनली आप कॉल कर सकते थे, लेकिन अब आप मोबाइल वीडियो इतने ही फीचर्स आ गए हैं, तो वी कैन से दैट फीचर इसमें आए हैं, दैट इज डायनामिक। तो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध बच्चे, ये डायनामिक है, बदलता रहता है। एनवायरनमेंट चेंजिंग डे बाय डे एंड इंटेंजिबल फोर्स। व्हाट इज मैनेजमेंट? इंटेंजिबल क्या होता है? जो अदृश्य हो, जिसको मैं देख ना सकूं, आई कांट सी। तो मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, डिसिप्लिन्ड स्टाफ एटसेट्रा। उसके रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्रबंध है वो कितना अच्छा होगा। नेक्स्ट है बच्चे, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। ये एक ही प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता प्रबंध जो है, इसमें कई प्रकार की जो है एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मल्टी डायमेंशनल का मतलब जो है, कुछ लोग देखिए यहाँ काम कर रहे हैं, एंड कुछ पीपल्स हैं, पीपल वर्क फोर्स है हमारे पास, एंड यहाँ पर ये ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल फीचर्स में हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इस में जब संगठन कुछ कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये प्रबंधकीय क्रियाओं को का जो उद्देश्य है उसको पूरा किए जाने वाले जो कार्य है या लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, या कार्य अथवा लक्ष्य व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एक स्कूल में किया जाने वाला कार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है, और अस्पताल में, हॉस्पिटल में आप देखते हैं उसमें जो किया जाने वाला कार्य हो मरीज का इलाज करना होता है। और उद्योगों में किया जाने वाला कार्य क्या है के लिए होता है, और द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए हम वहां पर काम करते हैं। तो यह सुनिश्चित करना है कि कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है। तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, या वर्क फोर्स जो है। तो जो व्यक्तियों के प्रबंध का अर्थ है मानव शक्ति को इस ढंग से तैयार करना ताकि वो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जुटे रहें, अग्रसर हों, और उसमें मानव शक्ति किसी संगठन की महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। और प्राय व्यक्तियों का जो प्रबंध है वो दो संदर्भों में किया जाता है, एक व्यक्ति के रूप में और एक समूह के रूप में। तो एंड दैट इज नंबर 3, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। किसी भी तरह का संगठन हो, उसे जीवित रखने के लिए यदि उत्पादन अथवा सेवाएं प्रदान करनी होती है, इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल तथा तकनीकी प्रयोग से माल बनाना की जरूरत होती है। और कार्य का जो प्रबंध है तथा व्यक्तियों का प्रबंध, दोनों इसमें से संबंधित होते हैं। तो दिस इज मल्टी डायमेंशनल, एंड हियर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन होगी, सेल्स होगी एंड परचेज होगी। सो दीज वर सम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो tomorrow we shall discuss some objectives of management. So till now बच्चे, आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। If you have any query, do write in the comments. If you have any suggestions also, you also can comment. So do like, share and subscribe this channel. Thank you.